Hi students, in this video I am going to explain you chapter number 1, Nutrition in plants. So in this video I am going to cover all the aspect of this chapter, and this video is going to be very interesting. I want you to watch this video till end. So let us first of all tell me what are the topics, subtopics that we are going to study in this chapter. What is nutrition and what is nutrient. Then we'll compare autotroph and heterotroph. We'll understand that plants store carbohydrate in the form of starch. Then we will summarize the equation of the photosynthesis and we will describe how photosynthesis takes place. Then we will distinguish different type of heterotrophic nutritions, and then we will tell you how we detect the presence of starch in leaves, and at last we will understand how nutrients are replenished in the soil. मतलब कि मिट्टी में nutrients फिर से कैसे जो है वो जाते हैं. So a topic so these are the topics which are going to be covered, and let us start with the introduction. So just have a look on these pictures. You see mushroom, fish, zebra, crocodile, flower, dragonfly, frog, tree, birds. So after looking this, I just want you to ask that what are the characteristic of the living organism that you feel. Okay, all living organism which have life processes functional in them, they show growth, isn't it? Okay, like you are a living organism, you show growth. And then nutrition. Okay, we take nutrition, and all the living organisms, they do respiration. Organisms, they do reproduction, new babies are formed. And organisms show movement also, and excretion also. Waste products are formed in our body which comes out. And living organism also shows sensitivity. Organisms have sense of smell, sense of touch, taste, vision, hearing, etc. Okay, although these sensitivity part is less in plants, but other living organisms, they have all these that walking living organism I'm talking about, they have this sensitivity part very much developed. Now the life processes, if you want to remember all these points with the help of a mnemonic means this shortcut form, so you can remember like this. Okay, there are 7 life processes which if asked in the question or in exam, you can remember like this: Mr. SGREN. Okay, so like this you can remember Mr. SGREN. So M for movement means organisms show movement, change in the place and position. R for respiration. S for sensitivity. G for growth. R for reproduction, and X for excretion, and N for nutrition. So like this you can make a mnemonic and you can remember all the features of the life processes, all the features of the living organisms. So organisms need food, we all know. Why organisms need food? To obtain energy, to achieve the growth, and for repairing the damaged body part, and to carry out the life processes. Okay, so these are the points for which the organisms require food. Now what are the different components of the food? This you definitely have studied in class 6th also, that food has fat, protein, vitamin and minerals, and obviously carbohydrate too. So how you are going to define the nutrients? Nutrients means carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals, which are essential component of the food, and these components of the food are necessary for our growth and development of our body, and these are called as nutrients. Okay, so it is again shown here in the flowchart form, all the components of the nutrients. And in this picture you can very easily see that source of carbohydrate is potato, and here protein in the fish, egg, even in the milk, and fat is found in butter,
and vitamin is found in fruits, mineral is found in salt like sodium ion, magnesium ion, and this is water. Now, nutrition. What is nutrition? Nutrition is the mode of taking food by organism and its utilization by the body. Okay, so how the nutrition, like mode of nutrition, yeah, mode of intake of the nutrients, it should be nutrients, not nutrition. Okay, the mode of take of nutrients is nibbling. खरगोश कैसे खाता है? एकदम से ऐसे निबल करते हुए खाता है. स्वैलोइंग, ये गिरगिट है, विच इज़ कॉल्ड कैमेलियन इन इंग्लिश. ठीक है, ये स्वैलो करता है, अपनी जीभ एकदम से निकालेगा और एकदम से मक्खी अंदर. एंड च्यूइंग, जैसे जुगाली करते हैं ना ये बफलोज, काउज वगैरह, ये च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं. एंड लैपिंग, जैसे हमारे बिल्ली, डॉगीज ये होते हैं, ये लैपिंग करते हैं ना, चप चप करके जो है मिल्क को पी जाते हैं, चट कर जाते हैं. सो now we'll study about plant nutrition. In this picture what you see, being living organism, plant needs nutrition also. Animals की बात हमने कर ली, plants को भी nutrition चाहिए होता है. plants को nutrition कहाँ से मिलती है? sunlight से, और एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से, और ज़मीन में मौजूद वाटर से. इन तीन कंपोनेंट्स का यूज़ करते हुए प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं. एंड वी विल डिस्कस अबाउट फोटोसिंथेसिस इन कमिंग स्लाइड. बिफोर दैट विल स्टडी अबाउट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. सो देयर आर टू टाइप्स, वन इज ऑटोट्रॉफ एंड अनदर इज हेट्रोट्रॉफ. ओके, सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑटोस मतलब सेल्फ एंड ट्रोपोस माने फीड. सो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, इन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, plants make their food themselves. Okay, they use simple inorganic substances like light energy, water and carbon dioxide. They do photosynthesis and prepare their food on their own. They synthesize their food on their own. And heterotrophs obtain energy through intake and digestion of plants or animals. Okay, so heterotrophs depends on plants if they are herbivores, and heterotroph depend on other animal if they are carnivore. So this you are very much aware of. So now we will study about the photosynthesis. What is photosynthesis? It is the process by which green plants and certain other organisms transform light into chemical energy. So during the photosynthesis, green plants, they capture the sunlight. This is the green plant here, and it is capturing the sunlight, and use the water and carbon dioxide. This is water which is coming through roots, and this is carbon dioxide which it absorbs through atmosphere. Okay, and then it convert it into oxygen. So during photosynthesis, oxygen is released and energy rich organic compound carbohydrates are formed. Okay, वैसे बच्चों मैं आपको बता दूं कि फोटोसिंथेसिस जब होती है तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज जो यूज़ होना है यूज़ हो जाएगा प्लांट में, और एक्सेस ऑफ ग्लूकोज गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ओके, तो अब है सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. इट इज़ वेरी मच क्लियर फ्रॉम दिस फोटोसिंथेसिस पिक्चर. नाउ विल स्टडी व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इन फोटोसिंथेसिस. We all know that leaves have a green pigment called chlorophyll, and this chlorophyll help to capture the solar radiation. Okay, ये देखिए सोलर लाइट जब लीव के ऊपर पड़ती है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है. ये क्लोरोप्लास्ट है. क्लोरोप्लास्ट के भीतर ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बताया गया है. दिस यू नीड नॉट टू रिमेंबर, दिस वी स्टडी इन हायर क्लासेस. सो now what is the function of stomata? I was telling you that during the photosynthesis carbon dioxide is absorbed from the air and oxygen is released. From where this absorption takes place? This carbon dioxide is absorbed through tiny pores, मतलब छोटे छोटे छेद जो होते हैं on the surface of leaf. नॉर्मली ये लीव के सरफेस के नीचे होते हैं, लेकिन कुछ लीव्स में ये ऊपर होते हैं, और कुछ ऐसे भी लीव्स होते हैं कि दोनों ही तरफ ये पोर्स होते हैं. बट सबसे जनरल ट्रेंड जो है वो क्या है प्लांट्स में,
ये लीव्स के नीचे होते हैं स्टोमेटास। सो दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। तो ये जो पोर्स होते हैं ना बेटा, ये गार्ड सेल से सराउंड होते हैं। ये देखिए, ये आप सेंटर में पोर देख रहे हैं और इसके भीतर ये जो छोटे छोटे जो है ये आप देख रहे हैं बल्जिंग पार्ट, दीज आर द गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल का काम क्या होता है? दीज गार्ड सेल हेल्प टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ओपन द स्टोमेटा होल। तो इस तरीके से नाइट टाइम में ये स्टोमेटास क्लोज रहते हैं और ड्यूरिंग डे टाइम ये स्टोमेटास ओपन हो जाते हैं, जिससे कि गैसेस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, ऑक्सीजन बाहर, और जो पानी है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन, रिमूवल ऑफ वाटर बाय द प्लांट लीव्स, ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में भी स्टोमेटा अपना रोल निभाती है। नाउ absorption of water and minerals. Water and minerals are transported to the leaves by vessels which run like pipes throughout the root, stem and branches of the leaves. तो ये आपका वाटर है जो इन पतले रूट से होते हुए ऊपर जाएगा स्टेम में, और स्टेम से होते हुए लीव्स में जाएगा, और लीव्स में जो स्टोमेटा है उसके माध्यम से ये हमारे एटमॉस्फेयर में भी H2O गैस, वाटर वेपर्स बाहर निकल आते हैं। Now we'll study the chemical reaction of the photosynthesis. Photosynthesis is a chemical process which take place in plant in which carbon dioxide from air interact or react with the water absorbed by roots in the presence of sunlight and chlorophyll which is present in the leaves, and get converted into glucose, and in this process oxygen gas is released. So in this way you can remember and you have to write this equation. So beta this reaction actually is not balanced. इसमें जो हम इनके जो टोटल मॉलिक्यूल्स को हम अगर काउंट करें तो आप यहाँ पे ये जो रिएक्शन देख रहे हैं इसमें बैलेंसिंग की गई है। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, फॉर्मूला इज C6H12O6 एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। अब अगर आप लेफ्ट और राइट साइड ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन देखें तो आपको बिल्कुल बराबर मिलेगा। दोनों तरफ 6 ऑक्सीजन, दोनों तरफ आप देखेंगे 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन हैं और 12 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है दोनों तरफ। तो इट इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन. So photosynthesis process has been depicted here with the help of a flow chart. So here only same thing is explained. Chlorophyll traps the solar energy to make the food. So it absorbs light, it absorbs carbon dioxide, it absorbs water, and then it get converted into glucose, and glucose finally converted into starch, and starch it is stored in different part of the plant. और स्टार्च के लिए हम टेस्ट करते हैं कि जब भी स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन के साथ मिलता है तो उसका कलर ब्लू हो जाता है, एंड द ब्लू कलर इंडिकेट्स दैट कि आपके सैंपल में स्टार्च मौजूद है. सो नाउ आई एम कमिंग टू दिस chemical test, how we can do this test for the presence of the starch in leaves. So dear students, what you have to do, you have to take a leaf, okay, leaf which is attached to the plant, and you have to cover it with the help of a black paper. With the help of a clip you can fix it. अब क्या होगा, इस ब्लैक पोर्शन पे सोलर रेडिएशन तो पड़ेंगी नहीं, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, और इसीलिए इसका कलर पड़ जाएगा पीला, और यहाँ पे कोई भी स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं होने वाली, क्योंकि स्टार्च फॉर्मेशन होने के लिए सोलर रेडिएशन का होना ज़रूरी है, सनलाइट होना ज़रूरी है. ब्लैक पेपर की वजह से इस पोर्शन पे धूप की किरणें नहीं पड़ रही हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे स्टार्च नहीं बनना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं. अब हम इसे प्रूव करेंगे. यू टेक अ बीकर, एंड बीकर यू फिल विद द हेल्प ऑफ हॉट वाटर एंड अल्कोहल, एंड इन दैट यू पुट अ लीव, यू पुट इन बीकर हॉट वाटर, and then you take a test tube. In test tube you take alcohol, and in alcohol you put this leaf. okay, अभी आपको जब इसमें टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो ये ब्लैक पेपर को, क्लिप को हटा देना है आपने. पेपर को हटाने के बाद अल्कोहल के सॉल्यूशन में आपने डाल दिया इस लीफ को.
इसके बाद आप इसके ऊपर स्टार्च टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, आयोडीन के ड्रॉप इसको पूरे लीफ को कवर कर देते हैं आयोडीन से। तो आप क्या पाते हैं कि जिस एरिया में सनलाइट पड़ रही थी वो एरिया ब्लैक हो गया है, लेकिन जिस एरिया के ऊपर आपका पेपर ब्लैक पेपर कवर्ड था वहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि उस पर आयोडीन का कोई असर नहीं हुआ, उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर स्टार्च बना ही नहीं। सो दिस टेस्ट shows that sunlight is very important for the process of photosynthesis, and photosynthesis process leads to formation of starch. No light, no starch. Synthesis of plant food other than carbohydrate. Okay, first of all we'll understand what is carbohydrate. Carbohydrate is a complex compound which is formed by combination of carbon, hydrogen and oxygen. Now कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्लांट्स जो है ना अपने जो उनको ग्रोथ के लिए उनको प्रोटीन भी चाहिए होती है। ओके, और प्रोटीन बनाने के लिए प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, और नाइट्रोजन इज़ नेसेसरी टू मेक प्रोटीन। ओके, अब प्रोटीन किन प्लांट्स में बनता है, ये बनता है लेग्यूमिनस प्लांट। जो दाल होते हैं, हम कहते हैं दालों से हमें प्रोटीन मिलती है, क्योंकि दालों की जो जड़ें होती हैं उनके जड़ों में एक बैक्टीरिया रहता है जिसे हम कहते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम बैक्टीरिया। वो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम एटमॉस्फेयर में जो मौजूद नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करता है और उसको सॉल्युबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, और इस सॉल्युबल नाइट्रेट को प्लांट की जड़ें एब्जॉर्व करती हैं और उनको नाइट्रोजन मिल जाता है, वो नाइट्रोजन जो उन्हें प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए। बदले में प्लांट उन राइजोबियम बैक्टीरिया को अपनी जड़ों में घर देता है, बैठने के लिए उनको शेल्टर देता है। तो इस तरीके से जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया है और जो आपका लेग्यूमिनस प्लांट है उनके बीच में एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन डेवलप हो जाता है जिसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस। ओके, सिम्बायोसिस। तो बेटा प्लांट्स अपनी जो नाइट्रोजन की कमी को इस तरीके से पूरी करते हैं, लेकिन अगर प्लांट में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करना है किसान ने तो वो खेतों में नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र भी डाल देता है। इस तरीके से भी प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है। नाउ लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स, तो हमने देखा होगा कि लीव्स हमेशा ग्रीन ही नहीं, वो रेड कलर के भी होते हैं, येलो कलर के भी होते हैं, ऑरेंज कलर के भी होते हैं। सो लीव्स हैव कलर अदर देन ग्रीन। ओके, leaves other than green also have chlorophylls. Okay, so large amount of red, brown and other pigment mask the green color. तो बेटा ये जो जिनमें रेड, ब्राउन या अदर येलो कलर रहता है ना उसमें क्लोरोप्लास्ट की जगह उसमें क्रोमोप्लास्ट होता है, और उनमें जो है ना रेड पिगमेंट होगा रेड वाले लीफ में, ब्राउन वाले लीफ में ब्राउन पिगमेंट होगा और येलो वाले लीफ में येलो पिगमेंट होगा। ओके, तो इसमें हम उसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट की जगह इनको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफ्स मैंने बताया था ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, अपने भोजन के लिए वो दूसरे जीवों पर या फिर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, वन इज सेप्रोट्रॉफ, अनदर इज पैरासाइट, नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट, और सिम्बायोटिक रिलेशन जिसके बारे में मैं आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन कर रहा था। तो बेटा सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट आर सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म take nutrients in solution form from dead and decaying matter। जो सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। द प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। जैसे मशरूम है ना, आप देखेंगे जो सड़े हुए पेड़ के तने के ऊपर वहाँ पे उगा रहता है, या कोई डैम्प जहाँ पे पत्ते सड़ रहे हो वहाँ पे मशरूम उग जाता है ना। वैसे ही आपने ब्रेड के ऊपर मोल्ड देखा होगा, ये बेटा उसके ऊपर जो मोल्ड है ना उसको स्पोरेंजियम कहते हैं वो है ये।
तो वो भी जो ऐसे सड़े हुए ब्रेड के ऊपर ये मोल्ड ग्रो करता है ना। तो दैट मोल्ड, दैट स्पोरेंजियम इज एक्चुअली सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म विच शोज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद बेटा पैरासाइट के बारे में पढ़ते हैं। द पैरासाइट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं। ऐसे प्लांट्स अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स कॉल्ड होस्ट। तो जिस प्लांट से ये अपना भोजन एब्जॉर्व करते हैं ना, उसे होस्ट कहते हैं। सिंस इट डिप्राइव्स होस्ट ऑफ द वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, इट इज कॉल्ड पैरासाइट। तो होस्ट का तो बेचारा वो अपने लिए भोजन बनाता है और पैरासाइट उसके ऊपर चिपक करके उसका भोजन को चुरा लेता है। तो इसीलिए हम इसको पैरासाइट कहते हैं, परजीवी जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि एक अमरबेल होती है ना, वो दूसरे एक पेड़ के साथ जो है चिपक जाती है और उससे वो अपना एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद पढ़ते हैं वेरी इंटरेस्टिंग इंसेक्टिवोरस प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। Such insect eating plants are called insectivorous plants. Okay, so such plant do not get all the required nutrient from the soil. देखो बच्चे पूछ सकते हैं कि सर ये दूसरे जीवों को क्यों खाते हैं, क्या ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं? करते हैं ना फोटोसिंथेसिस, लेकिन इनको इनकी फोटोसिंथेसिस से सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। ज़मीन से इनको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो बेसिकली ये दूसरे इंसेक्ट्स को इसलिए खाते हैं ना, क्योंकि दूसरे जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनके बॉडी में प्रोटीन होता है और इनको जो है प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन बनता है नाइट्रोजन से, तो बेसिकली इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को नाइट्रोजन कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो ये दूसरे इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करके प्राप्त करता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं वीनस फ्लाई ट्रैप, तो इस ट्रैप के भीतर यहाँ पे जैसे कोई भी अगर इंसेक्ट अगर घुस जाए तो ये एकदम से उसको क्लोज कर देती है और धीरे धीरे डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लेती है। पिचर प्लांट देखने में बहुत ही सुंदर, ऊपर से लिड लगी हुई है और यहाँ होल है, तो कोई भी इंसेक्ट यहाँ पे अट्रैक्ट होके आता है और जैसे ही इसके ऊपर अपने पैर रखता है, ऊपर से लिड बंद हो जाती है और वो नीचे चला जाता है, कैप्चर हो जाता है, एंड देयर एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ दैट इंसेक्ट टेक प्लेस। वैसे ही बेटा ये सनड्यू प्लांट देख रहे हैं, इसके ऊपर अगर कोई इंसेक्ट ट्रैप हो जाए तो ये अपने टेंटिकल्स जो इनके बाहर जो ऐसे निकले हैं ना, ये लंबे लंबे से ब्रश जैसे, इनको टेंटिकल्स कहते हैं। इन टेंटिकल्स को ये एकदम से जो है कैप्चर कर लेता है, इनको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और इंसेक्ट उसमें ट्रैप हो जाता है। नाउ विल डिस्कस वंस अगेन अबाउट द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये लाइकन में होता है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। ओके, एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकन, a chlorophyll containing partner which is alga and fungus live together। तो बेटा लाइकन में ना दो चीज़ें होती हैं, एल्गा एंड फंगस। आप ये जो लाइकन्स है ना, ये बड़े बड़े जो पुराने चट्टान होते हैं उनके ऊपर या कुछ ट्रीज़ के ब्रांचेस के ऊपर हमको मिलते हैं, और ये लाइकन को अगर हम पानी के साथ थोड़ा कूट पीस लें तो इससे मेहंदी बनती है। तो लाइकन एक्चुअल में ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म आपस में दोस्ती करते हैं, एक एल्गा होता है, दूसरा फंगस होता है। तो फंगस क्या है, एल्गा को शेल्टर देता है, उसको पानी देता है, मिनरल्स देता है। ओके, और एल्गा बदले में फंगस को क्या देता है, फूड। क्योंकि एल्गा तो ग्रीन होता है इसलिए वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, वो भोजन बनाता है, और उस फोटोसिंथेसिस से जो स्टार्च बनती है उसको फंगस भी एब्जॉर्ब करता है। इस तरह से इन दोनों के बीच में दोस्ती रहती है। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फंगस एंड एल्गा टुगेदर फॉर्म लाइकन। नाउ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन लेग्यूम, ये मैंने आपको अभी पीछे एक्सप्लेन किया था। तो लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब दालों वाले प्लांट, जैसे कि काले चने की है ना, और भी आपके देखते हैं जो दालें। तो जो दालों वाले जो प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है सॉल्युबल फॉर्म में अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। सो द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल फॉर्म।
ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम बोलते हैं इसका पूरा नाम, ये एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन राइजोबियम अपना भोजन जो है खुद नहीं बना सकता है, तो ये क्या, ये राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, तो इसलिए ये क्या करता है कि ये इस लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, ये देखो रूट नोड्यूल्स, ये जो गोलू गोलू है यहाँ पे आपका राइजोबियम बैक्टीरिया बैठा हुआ है, तो इन रूट नोड्यूल्स में ये रहता है, ओके। और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। कैसे कराता है नाइट्रोजन? एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्व करके सॉल्युबल नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, और उस नाइट्रेट को प्लांट की जड़ें एब्जॉर्व कर लेती हैं और उस प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है। बदले में ये प्लांट इन्हें अपनी जड़ों में रहने के लिए जगह देता है। दीज प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, और साथ में फूड भी देता है इस राइजोबियम बैक्टीरिया को। सो यहाँ पे भी अच्छी दोस्ती है, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है। तो लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं उनके एग्जाम्पल्स के पिक्चर बिल्कुल सामने है, ये देखिए आपकी मसर की दाल है, राजमा है, काले राजमा है, और यहाँ दाल चना है, मूंग दाल है ना, ये राजमा, ये सफ़ेद रौंगी है, तो इस तरह से मटर है। ये सारी जो दालें हैं ये लेग्यूमिनस प्लांट है, और इन सभी की जड़ों में ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, और यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रीप्लेनिश्ड इन द सॉइल? न्यूट्रिएंट्स फिर से मिट्टी में वापस कैसे जो है रिसाइकल होते हैं? तो इसका एक तरीका है स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र इन द फील्ड, कि किसान खेत में जाएं और उसमें फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर जो हम गोबर से बना हुआ जो खाद होती है उसको हम मैन्योर कहते हैं, तो इनमें जो नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस ये काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो ये टाइम टू टाइम अगर खेत में डाल के रखें तो खेत जो है न्यूट्रिएंट रिच रहता है। और दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर खाद नहीं डालना है, चलो उसको ऑटोमेटिक ही प्लांट को या मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स बनती रहे, उसके लिए हमें लेग्यूमिनस प्लांट खेत में उगाने चाहिए, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों में वो राइजोबियम नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और इस तरीके से मिट्टी में वो नाइट्रोजन कंटेंट अवेलेबल रहेगा, मिट्टी उपजाऊ रहेगी। हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रीप्लेनिश्ड इन द सॉइल, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हैं बेटा। तो इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स प्लांटिंग 2 और मोर प्लांट्स साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड, ठीक है। तो मिक्स क्रॉपिंग में भैया एक तरफ आपने लगा दिए लेग्यूमिनस प्लांट्स और दूसरी तरफ लगा दिए जिसमें कि नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। तो लेग्यूमिनस प्लांट जो है वो उसमें मौजूद जड़ों में मौजूद बैक्टीरिया मिट्टी में नाइट्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब करता रहेगा नाइट्रेट की फॉर्म में, और दूसरी तरफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है उनको भी वो जड़ों से जो है वहाँ से प्राप्त होता रहेगा। दूसरा तरीका है क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब है ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन अ सक्सेशन ऑन अ पीस ऑफ लैंड टू अवॉइड द एग्जॉशन ऑफ द सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड टू कंट्रोल द वीड, पेस्ट एंड डिजीजेस। तो कहने का मतलब बेटा इसमें यह है कि सबसे पहले हम लोग क्रॉप रोटेशन में, सपोज आपने एक मौसम में आपने लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो कर दिए, और उसके बाद जो नेक्स्ट मौसम आएगा ना उसमें आपने वो नॉन लेग्यूमिनस वाले प्लांट कर दिए, है ना। तो इस तरीके से मिट्टी में कभी भी आपको जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट को ना ग्रो करने के लिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ यू कीप ऑन ग्रोइंग सेम टाइप ऑफ प्लांट इन फील्ड देन द सॉइल विल बिकम like deficient in certain type of nutrients, that therefore we should do the crop rotation so that nutrient balance remains in the soil. Now how are nutrient replenished in the soil? I am continuing field fallow, okay. फील्ड फैलो का मतलब एक और तरीका भी है, लीविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड टू अवॉइड एग्जॉशन ऑफ द सॉइल न्यूट्रिएंट। तो बेटा देखो नया तरीका बता दिया
कि आपने खेत है, खेत के एक हिस्से में आपने प्लांट ग्रो की और दूसरे हिस्से को एक मौसम के लिए छोड़ दिया, तो वहाँ पे धीरे धीरे थोड़े से न्यूट्रिएंट्स जो हैं डेवलप हो जाएंगे और फिर जो है आपने यहाँ पे प्लांट को ग्रो करना शुरू कर दिया और इधर आपने उस खेत को अगले सीजन के लिए छोड़ दिया। एक तरीका ये भी है, दिस इज कॉल्ड फील्ड फैलो। और अगला तरीका है जो सबसे बढ़िया तरीका है, दैट इज मेकिंग कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या है? इट इज द ऑर्गेनिक मैटर दैट हैज बीन डिकम्पोज्ड इन अ प्रोसेस कॉल्ड कंपोस्टिंग। In this process, it recycles various organic material otherwise regarded as waste product and produces a soil conditioner. तो बेटा वेस्ट कंपोस्टिंग में क्या है कि जो भी खेतों से हमें अनवांटेड प्लांट पार्ट्स मिलते हैं उनको एक जगह डैम्प कर देते हैं और उसमें हम अर्थवर्म्स को ग्रो करते हैं। वाटर की प्रेजेंस में जब हम उसको डैम्प कर देते हैं तो धीरे धीरे वो जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है और पशुओं से प्राप्त जो गोबर है, लीव्स हैं, उन सभी को मिक्स करके डैम्प कर देते हैं। तो उसमें जब अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स ग्रो करते हैं उसको डिकम्पोज कर देते हैं और एक बहुत बढ़िया कंपोस्ट खाद के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम अगेन खेतों में यूज़ कर सकते हैं। So now finally I am going to explain you about the summary what we studied in this chapter. Number 1, organism need food and utilize it to get energy for the growth and maintenance of body. Number 2, green plants synthesize their food for themselves by the process of photosynthesis and they are called autotrophs. Plant like Cuscuta are the parasite and they take food from the host plant. So plant use simple chemical substances like CO2, water and mineral for synthesis of food. And last point, chlorophyll, water, CO2, sunlight are essential requirement for the photosynthesis. And the next point is complex chemical substances such as carbohydrates आर प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, पहले ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च लेटर ऑन। तो ग्लूकोज और स्टार्च दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग टाइप्स हैं। सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स and oxygen is produced during the photosynthesis. So these were all important point about this chapter named nutrition in plants. Hope you enjoyed this video. If you have any questions or concern, you can please put it in the comment box. Stay fit, stay fine. Thank you.